हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2025-26 में कंडक्ट हुए ओलंपियाड के एनएसओ पेपर को शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Select the correct mirror image of the given figure. इसका आंसर है ऑप्शन बी। Pranit reached badminton court at 7:15 a.m. He practiced there for 2 hours 50 minutes and then left the badminton court. Which of the following clocks shows the time at which Pranit left the badminton court? 7:15 plus 2:50. That means 10:05. So answer will be A. Each letter in the figure is connected to another by a straight line. In how many different ways can you form the word board? So board, BOARD, board 1, 2, 3, 4. Answer will be C, that means 4. Now there are dash horizontal and dash vertical lines in the given figure respectively. Answer will be D. Now come to the next question, that is which of the following statements are incorrect. तो हम देखते हैं कि हमें पता है जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट, ये तो सही है। तो जहाँ जहाँ पे 2 है वो तो सही है। तो एंड ट्रीज लाइक साल एंड महागनी गिव्स अस वुड फॉर फर्नीचर, तो इसका हमें इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर है 1 and 3. सो आंसर विल बी ए। हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर होगा डी। Now question number 8, select the odd one out on the basis of their eating habits. हम देख रहे हैं कि ईटिंग हैबिट्स के अनुसार जो ABC है वो हर्बीवोर्स है और बाकी जो D है वो इसका सही आंसर हो जाएगा D. Which of the following is not an energy giving food? हमें पता है ऑप्शन ABC फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड है, तो इसका आंसर हो जाएगा D. In the following food chain, what does X represent? यहाँ पे X रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ये हर्बीवोर खाएगा, उसे फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ये काइट खा रहा है। ठीक है, ये फूड चेन है। Now come to the next point. Read the given statements and select the option that correctly identifies them as true and false. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमें पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं, तो इसका आंसर इसमें 1 गलत है, इसलिए फॉल्स है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, दैट मीन्स बी। सेलेक्ट
the option which on unscrambling gives the name of a professional who builds houses using bricks, cement etc. तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, ये है मैसन. ओके, refer to the given classification chart and select the option and that correctly identifies x and y. तो इसका आंसर यहाँ पे जूट. जूट भी डायरेक्ट प्लांट से आता है और लिनन भी कॉटन से आता है, कॉटन प्लांट से आता है. दैट मीन्स इसका आंसर होगा सी. Which of the following vehicles helps us to travel up and down a hill or a mountain? आंसर होगा इसका बी. X and Y are means of personal communication. X allows verbal interaction while Y involves handwritten messages. Identify X and Y. तो इसका आंसर होगा बी. Which of the following symbols represents railway line on a map? इसका आंसर होगा बी. Which of the following characteristic is common among the organs X and Y shown in the given picture? यहाँ पे हमें लंग्स और हार्ट का दिया हुआ है. ये दोनों ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रीब केज के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं. तो इसका आंसर होगा बी. Unscramble the letters to find the name of the organ system shown in the given figure. ये हमारा किडनी है और ये एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है. बाकी बी में दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम और सी में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डी में है स्केलेटन सिस्टम. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. Very good. Now question number 19. I am a snowball of frozen gases, rocks and dust from space. I have a long tail that you can trace. When I get near the sun, I shine bright, leaving a trail of sparkling light. इसका आंसर होगा comet. That means option B. Now come to the next question. A puddle of water on the road disappeared on a sunny day. Which phenomena led to its disappearance? तो इसका आंसर होगा evaporation. Very good. Which of the following options shows an example of elastic force? हम देख रहे हैं ऑप्शन ए है ये मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स और डी है एक पुल एंड पुश फोर्स. तो बी जो है इसका आंसर होगा इलास्टिसिटी, इलास्टिक फोर्स का. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ select the group in which odd one is encircled incorrectly on the basis of luminous and non-luminous objects. यहाँ पे हम ऑप्शन ए में देखते हैं टेबल और चेयर नॉन ल्यूमिनस है और ट्यूबलाइट है ल्यूमिनस. तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये हमें इनकरेक्टली फाइंड आउट करना है. बी है टॉर्च एंड लैम्प और अर्थ. टॉर्च एंड लैम्प जो है वो ल्यूमिनस है, अर्थ नॉन ल्यूमिनस है. सन मून दिया, यहाँ पे तीनों ही ल्यूमिनस है, इसलिए ये आंसर हमारा ये सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, जिसे हम को इनकरेक्ट करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. स्ट्राइक अवर एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द
first one and select the option that gives the name of the process by which the top layer of soil is removed by the action of water or wind। तो हमें पता है कि वह प्रोसेस जिसमें सॉइल का जो टॉप लेयर है वो रिमूव होता है उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब हम शुरू करते हैं यहाँ पे तो ए को ऑप्शन दे दो, बी को छोड़ करके ई, वैसे ही टी को हम स्किप करते हैं तो आर आता है। इस तरीके से हमारा ये बन जाता है ई आर ओ एस आई ओ एन, इरोजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स कम्स इमीडिएटली बिफोर विंटर इन इंडिया, दैट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ फूड चेन, तो यहाँ पे आंसर होगा ग्रास, ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा, तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट ढूंढना है, हमें पता है डायरेक्ट देखते हैं कि द स्टेम कैरीज फूड फ्रॉम द लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यही हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर डी। Study the given Venn diagram and select the option that correctly identify X। हमें देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा कि ये फ्लाइटलेस बर्ड भी है और ये जो नेस्ट बनाता है वो स्टोन और पिटबल को लेकर के बनाता है, तो इसका आंसर होगा बी। The food item shown in the given picture is traditionally made by which of the following cooking method? This is nothing but frying. Okay, very good. Now come to the next question. Which of the following professionals are uses the tool shown in the given picture? ये एक बैलेंस है और इसे यूज़ करते हैं ग्रीन क्रॉसर द्वारा, तो ये इसका आंसर है डी। सेलेक्ट द रोड साइन दैट रिप्रेजेंट वन वे, इसका आंसर होगा डी। अचीवर्स सेक्शन हम देखते हैं। रेफर टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, तो हमें एक कॉलम में नेम दिए हुए हैं, नेम ऑफ डैश, एंड दूसरे में बॉक्स नंबर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ए में, देखते हैं अ मिनरल यूज इन पेंसिल लीड्स, हमें पता है कि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनती है, तो ग्रेफाइट कहाँ लिखा हुआ है, GR3 में लिखा हुआ है, GR3 में लिखा हुआ है, और 7 में PH ग्रेफाइट, GRAAP 7 में AP, HI उसके बाद TE, तो ये हो गया ग्रेफाइट, तो सही है। और उसके बाद देखते हैं रॉक विच इज़ यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर में प्यूमिक स्टोन जो है वो यूज़ होता है। अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ यूजुअली बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे सैंडी दिया हुआ है जो कि गलत है, तो इसका आंसर इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, इसका आंसर सी होगा। और अ प्रोसेस विच चेंजेस वाटर इनटू आइस, तो ये होता है फ्रीजिंग, तो यहाँ पे फ्रीजिंग का भी इस पॉइंट्स में दिया हुआ है। नाउ रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द blanks W, X, Y and Z. Our solar system consists of many heavenly bodies. W is a big ball of fire that gives us heat and light, तो ये हो जाएगा हमारा सन, W है सन, ठीक है। फिर देखते हैं डैश रिवॉल्व्स अराउंड W इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा हमारा प्लैनेट, प्लैनेट जो प्लैनेट होगा, प्लैनेट
प्लैनेट हमारा हो जाएगा एक्स। वैसे ही द ओनली नोन हेवनली बॉडी इन अवर सोलर सिस्टम इज सपोर्ट लाइफ इज वाई। हमें पता है अर्थ है, तो अर्थ हो जाएगा हमारा वाई। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ वाई, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज डैश मून। तो आंसर होगा मून हमारा जेड हो जाएगा एंड हेंस इसका आंसर हो जाएगा ए। Refer to the given table and select the option that correctly identifies x and y. x and y ट्रांसपेरेंट हम देख रहे हैं x and y में ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट हमें पता है रबर टॉय ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट होती है। रबर टॉय फ्लेक्सिबल होती है, विंडो ग्लास फ्लेक्सिबल नहीं होती है। वैसे ही रबर टॉय हमारा वाटरप्रूफ है और विंडो ग्लास भी वाटरप्रूफ है, तो इसका आंसर होगा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। हम देख रहे हैं द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पेटल। पेटल मीन्स देखिए पेटल यहाँ लिखा हुआ है, ये पेटल है, पेटल। फिर द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज लैमिना, ये है लैमिना। पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इज रूट। द टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ये होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा, जो कि इस वर्ड ग्रिड में नहीं दिया हुआ है। सो आंसर विल बी डी। Read the given statement and select the option that correctly identifies the incorrect ones. So, iron is a mineral which keeps our blood healthy. हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। Cinnamon is a spice obtained from the peel of a fruit. नहीं, ये stem, ये होता है stem, तो ये है गलत। Pulses are rich in carbohydrates. No, pulses are rich in protein. Cooking oil is obtained from seeds of plants like sunflower. Yes. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट वंस, तो इनकरेक्ट वंस हमारा 2 and 3 है। सो 2 and 3। सो थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मुझे और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियो देखना है, तो मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊंगी। सो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।